جن کو بلایا جائے گا. اس طرح کوئی نہ جائے, وہاں نظام بگڑ جائے گا, پھر آپ حضرات کو دقت ہوگی. انشاءاللہ مختصر بات سنیں گے, پھر انشاءاللہ اپنی باری پہ ناشتے کے لیے جائیں گے. راہ خدا میں جانے والے احباب سے گزارش ہے وہ سامنے تشریف رکھیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله المولانا العظيم. وقال نبينا المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم: أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائیو، دوستو، اصل تو ہمارے بڑوں کی بات نہیں ہے. اصل باتیں تو وہی ہیں جو نظام الدین کی منشا اس وقت ہے. کیونکہ میرے بزرگوں، میرے بھائی دوستوں، پورے عالمی سطح کے نسبت سے ان کے سامنے کام ہے. اب انہی حضرات کی منشا کی وجہ سے اس وقت کوئی مجلس نے اپنے مشورے سامنے طے کی تھی. ان حضرات نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑی سی مجلس اس وقت ہو جائے، اس وجہ سے آپ حضرات سے چند باتیں عرض کریں گے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیو دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، ہم دعوت کی نسبت پر جڑے. اب دو قسم کے طبقے ہمارے سامنے ہیں. ایک تو وہ ہے جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور میرے بزرگوں، میرے بھائیو دوستو، اور کچھ طبقہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر نقد قبول ہوا، اور کچھ 15 شعبان سے انشاءاللہ نکلیں گے. بہرحال جو جانے والے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ تو بہت اجتماع کا سمجھو کہ وہ خلاصہ ہے، اور اجتماع کی تمام خیر اس میں سے وافر حصہ اور زیادہ حصہ وہی لے گئے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر صاف ہے، بخاری شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے: لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گھڑی صبح کی، ایک گھڑی شام کی اللہ کے دین کی نسبت پر لگانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے. علماء نے لکھا اس حدیث کے تحت دنیا میں جو کچھ ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا یعنی دنیا کے اندر ذکر کرنے والوں کا ذکر بھی ہے، طواف کرنے والوں کے طواف بھی ہیں، اور تلاوت کرنے والوں کی تلاوت ہے. یعنی نیک اعمال سے بھی سب سے اعلیٰ مقام اس انسان کا ہے جو اللہ کی دین کی نسبت پر، دین کو سیکھنے یا دین کو سکھانے کی نسبت پر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کہ اللہ کا دین عام ہو جائے دنیا کے اندر. اس کی ایک گھڑی تمام اعمال کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل گھڑی اسی کی ہے. کیونکہ یہ کس لیے جا رہا ہے کہ جو مقصد ہے قرآن کے نزول کا کہ قرآن زندگیوں میں آ جائے، میری زندگی میں، امت کی زندگی میں، یہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اب میرے بزرگوں، میرے بھائیو دوستو، اب یہ مقصد اعلیٰ مقصد ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مقصد ہے. اب اصل تو وہی ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کی قدر جب ہم کریں گے، اللہ کے راستے کے اندر جو دن ہمارے گزریں گے، جب ان کی قدر ہوگی تو میرے بزرگوں، میرے بھائیو دوستو، تو یہ وصول ہو جائے گا پورا چلہ، یہ 4 مہینہ پورا وصول ہو جائے گا. ورنہ یہ 4 مہینہ یہ چلہ یہ گھروں میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، یہ تو گھروں میں بھی مکمل ہو سکتا. پھر کیوں ہم اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں؟ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہم اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں. ہاں، ایک تو یہ نیت ہو کہ میں اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے
अल्लाह के रास्ते में हम जाते हैं बुजुर्गों, कि हम नहीं बढ़े। इसलिए कुरान करीम फरमाता है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इसके तहत उलमा ने लिखा है इस आयत के अंदर 3 किस्म की जिम्मेदारी है, 3 किस्म की, एक तो आलमी जिम्मेदारी, एक अपनी जिम्मेदारी, और एक मेरे भाई दोस्तों आजिज़ी करने की आखिर में नसीहत। एक तो जिम्मेदारी यह है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बढ़िया बात किसी की हो ही नहीं सकती। एक आलिम ने तर्जमा फरमाया कि उससे अच्छा दीन किसी का हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा दीन किसी का हो ही नहीं सकता कि जो दूसरों में भी मेहनत कर रहा हो और फिर दूसरा अपनी जिंदगी में भी दीन ला रहा हो, इससे अच्छा दीन किसी और का हो ही नहीं सकता है। सबसे आला दीन जो है ना उस इंसान का है जो अपना जात से भी अमल पर है और दूसरों की तरफ दूसरों में मेहनत भी कर रहा है। इससे आला दर्जे का दीन किसी का हो नहीं सकता है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे उम्दा बात, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की दीन की तरफ दावत दे, व अमिल सालिहा, और अपनी जात से भी नेक अमाल करे। अब ये 2 काम करने के बाद किब्र न हो, काम भी कर रहा है उम्मत के अंदर और अपनी जिंदगी में भी ला रहा है, अब इससे किब्र ना आ जाए। वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, यूं कहे आम मुसलमानों में से एक मुसलमान मैं भी हूं, आजिज़ी करे, इनकिसारी आ जाए। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों दोस्तों, फरमाया कि इससे आला, इससे ये 3 सिफात जिसके अंदर आएगी तो उससे अफसल दीन किसी का हो नहीं सकता है। अब मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों दोस्तों, ये किस तरीके से हो जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये 2 तरीके की 2 लाइनों की मेहनत, दावत की 2 लाइनें हैं। एक तो है मकाम पर काम और एक है बैरून की नक्ल हरकत चिल्ला 4 महीना। ये परिंदे के 2 पर है, ये परिंदे के 2 पर, जैसे परिंदा परवाज करता है किससे कि 2 पर के जरिए से, उसके 2 पर होते हैं, 2 बाजू होते हैं। ऐसे ही दाई अल्लाह के दीन की निस्बत पर मेहनत करने वाले के 2 पर हैं अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए। एक तो मकाम पर मेहनत है, एक पर यह है, और दूसरा मकाम पर मेहनत के साथ साथ फिर दूसरा पर इसका है बैरून की नक्ल हरकत। अगर दाई का कोई एक पर कट गया, अगर बैरून की नक्ल हरकत इसकी छूट गई, चिल्ला 4 महीना साल का इसका छूटा है, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, गोया कि इसका दाई का एक पर कट गया। जैसे परिंदा एक पर से उड़ नहीं सकता, परिंदा एक पर से परवाज नहीं कर सकता, ऐसे ही दावत देने वाला अगर उसका ये खुरूज का पर कट गया है वो तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा खुरूज खूब हो रहा है, लेकिन मकामी काम में जुड़ा नहीं है, मशवरा नहीं कर रहा है, मुलाकातों में नहीं है और गश्तों में नहीं है और मेरे भैया तालीम में नहीं है और सहरोजा में नहीं है, तो क्या है? तो फरमाया कि इसका मतलब गोया कि इसका एक और पर कट गया, ये भी नहीं तरक्की कर सकता। तो वही इंसान दावत के अंदर आगे जाएगा जो दोनों मेहनतों को साथ लेकर के चले, मकामी मेहनत भी हो और बैरूनी नक्ल हरकत भी हो। हाँ मेरे बुजुर्गों, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यूं फरमाया, रजाना मिनल जिहादिल अस्गर इलल जिहादिल अकबर, कि हम मकामी काम को, आप अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मकाम पर रहकर के काम का करना ये जिहाद अकबर है, ये जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। क्यों कि जब इंसान फारिग होकर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आला दर्जे की बात है, बस सब कुछ छोड़ दिया, हिजरत की अल्लाह के दीन को जिंदगी में लाने की निस्बत पर, इस पर हिजरत की, लेकिन मकाम में रह करके अब इसको बच्चों का तकाजा भी है, अब इसको हम अपनी मुख्तलिफ किस्म के तकाजे इसके साथ पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे बुजुर्ग इसका नफ्स अब इसके साथ है। अब बहुत कम बाज़े मरतबा तो मुश्किल ये हो जाती है कि हम तकबीरुल्लाह के साथ भी मकाम पर मेहनत करें, ये तकबीरुल्लाह की भी पाबंदी करें, इसका भी मुश्किल पड़ जाती है। क्यों? वहां इसके तकाजे, अभी क्या है, कभी तो सरदर्द है, कभी क्या है, अपनी दरिया माश के अंदर इतना थक गया कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, ये बेचारा कि अब क्या है कि तकबीरुल्लाह पढ़ना भी चाहेगा, तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ नहीं सक रहा है। हालांकि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई दोस्तों, फरमाया कि जिस साथी की, जिस दावत देने वाले की, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पूना के थे, महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार थे, जो हाफिज मंजूर साहब, अब तो हाफिज मंजूर साहब हैं, इनसे पहले मौलाना यूनुस साहब थे। फरमाया जिस दावत देने वाले की रकात छूटे और जब रकात पूरी करने के लिए खड़ा हो जाए मस्जिद के अंदर, फरमाया कि उसने बड़ी मस्जिद के अंदर तबलीग को नंगा कर दिया है कि रकात छूटे दाई की, फिर दाई कैसा है, फिर ये दावत देने वाला कैसा है। इसलिए मेरे मुंशी अल्लाह देता रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमीर साहब ने एक मौके पर फरमाया कि मुंशी साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से मेरी तकबीरुल्लाह नहीं छूटी है। ये हमारे अकाबिर है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, शौक मनाया करते थे तकबीरुल्लाह के छूटने पर। हाँ, एक सुन्नत के छूटने पर सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह एक सुन्नत छूटी, हम तो सोचते तकबीरुल्लाह क्या
है? सुन्नत ही तो है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की बायां पांव एक मर्तबा मस्जिद के अंदर रख दिया, बायां पांव। जब बायां पांव मस्जिद के अंदर रखा तो मेरे बुजुर्गों ये भी आवाज सुनाई दी, या सौर ए बेल, आई दांदा, सौर के मैंने आता है अरबी के अंदर बेल, ए बेल, कि बायां पांव मस्जिद के अंदर रख दिया। अल्लाह के घर के अंदर आने का अदब भी मालूम नहीं कि अल्लाह के घर के अंदर कैसे आना है, ये भी मालूम नहीं तुम्हें। हालांकि वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े फकीह है वक्त के, लेकिन सौर की आवाज, बेल की आवाज ये भी सुनाई दी सिर्फ एक कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ उठने पर। खुदारा जरा हम सोचे तो सही, मेरे और आपके लिए क्या आवाजें आती होंगी, हमारे लिए क्या आवाजें आती होंगी, ये भी कि हमारा कौन सा कदम मेरे बुजुर्गों अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक चल रहा है। कोई एक कदम भी हमारा है तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों दोस्तों, ये जो अल्लाह के रास्ते के अंदर जा रहे हैं, अभी एक भाई हबीब बता रहे थे महाराष्ट्र वाले जो हम इन बुजुर्गों के साथ थे, फरमाया अब तो जमातों में तो मेरे भाई दोस्तों हाँ कोताही हो गई, एक आयत भी जमात पूरा हाँ सीखती नहीं है, एक आयत नहीं सीखती एक दिन के अंदर, एक आयत भी, और एक दुआ भी नहीं सीखती, हाँ एक दुआ भी नहीं सीखती जमात अल्लाह के रास्ते के अंदर एक दिन के। फरमाया हालांकि फारिग किसी के लिए होकर के चला गया है। बहुत सारी नसीहतें बता रहे थे, एक उसमें से ये भी बताई कि अल्लाह के रास्ते के अंदर न आयतें न कुरान सीखा जा रहा है अब सही ढंग से, न कुरान को वक्त दिया जा रहा है, न मसनून दुआओं को वक्त दिया जा रहा है, तो फिर क्या है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों। और मालूम, और जिन जिन बातों को इल्म है, ये सुन्नत है, ये तरीका है, लेकिन उसको भी नहीं जिंदगी में ला रहे हैं, तो खोखला हो जाएगा मेरे भाइयों, ये खोखला हो रहा है बेचारा गैर महसूस तरीके से। और मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ नसीहत है, अंतुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, तुम तो हिदायत पर सब तक रहोगे, और भी हिदायत पर रहोगे, हिदायत पर चलते रहोगे, हिदायत के रास्ते पर ही तुम रहोगे। मालम तज़हर फीकुम सकरतान, जब तक तुम्हें दो नशे नहीं आ जाएंगे, दो नशे जब तक तुम ना आ जाएंगे। सकरतुल जहल, एक तो जहालत का नशा है। जहालत का नशा होता क्या है कि एक इंसान को मालूम है कि खाने का तरीका क्या है, लेकिन खाएगा वैसा नहीं, ये जहालत का नशा इसको खिलवा रहा अपनी मर्जी से, ये जहालत का नशा चढ़ा हुआ है बेचारे को। एक इंसान को मालूम है मुझे मस्जिद के अंदर कैसे जाना है, लेकिन मस्जिद के अंदर वैसे नहीं जा रहा है कि बायां पांव मस्जिद में आने की 6 सुन्नतें उनको पूरा नहीं कर रहा है। भाई बायां पांव पहले निकालना यह सुन्नत था, दायां पांव मस्जिद में दाखिल करना यह सुन्नत था, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक ये दुआ पढ़ना सुन्नत था, बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल इतिकाफ ये दुआ पढ़नी ये सुन्नत थी, लेकिन इसको पढ़ नहीं रहा है। और मेरे भैया अगर नमाजी नमाज न पढ़ रहे हूं तो सलाम करना भी मुस्तहब उलमा ने लिखा है मस्जिद के अंदर, अगर नमाजी नमाज और आहिस्ता से अगर हाँ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों दोस्तों, अगर कोई मस्जिद में ना हो तो सलाम करे, फरिश्ते जवाब देते हैं, और अगर तिलावत में है, जिक्र में है तो आहिस्ता से अंदर से सलाम करे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मस्जिद में आने के आदाब थे, लेकिन एक इंसान चलेगा नहीं इन पर, अनाप शनाप आ रहा है, जो मर्जी जूता निकाल रहा है, जूता निकालना ही था बेचारे को, लेकिन कभी बायां पांव निकाल रहा है, कभी दायां पांव निकाल रहा है, इसको बेचारे को ख्याल ही नहीं मैं करके रहा हूं। वजह क्या है? फरमाया जहालत का नशा जब इंसान के अंदर आ जाता है तो हिदायत से हट जाता है, ये जहालत का नशा इस पर गालिब हो गया है। अब बैतुल खला में बायां पांव पहले डालना था, बैतुल खला के बाहर गुफरा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस दुआ पढ़नी थी, और फिर अंदर जाकर के बायां पांव पर टेक जगह लगाना था, और कपड़ा उस वक्त उतारना था जब बैठने के करीब होता। अब इस बेचारे को, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये नहीं करेगा, मालूम होगा कि बायां पांव डालना है, डालेगा दायां पांव बैतुल खला के अंदर, दुआ नहीं पड़ेगा, मालूम होगी, दुआ याद होगी, लेकिन जिंदगी में नहीं होगी, अमल में नहीं होगी, मामूल में नहीं होगी, इल्म में होगी। ये क्या है कि ये जहालत का नशा बेचारे पर सवार है। बस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है, नसीहत है मुझे और आपको, अंतुम अला बय्यिनतिन मिन रब्बिकुम, तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत पर रहोगे, मा लम तज़हर फीकुम सकरतान, जब तक तुम्हें दो नशे नहीं आ जाएंगे, जब दो नशे सवार हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, तुम हिदायत से हट जाओगे। सकरतुल जहल, एक तो जहालत का नशा है यही कि मालूम होगा करेगा नहीं, और फिर सकरतु हुब्बिल आईश, जिंदगानी जीने का नशा। अब जिंदगी के नशे के अंदर क्या करेगा? अच्छी सवारी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा पहनना हो, अच्छा कमाना हो, बस इसी के चक्कर के अंदर दीन को छोड़ बैठेगा, इस हिदायत को छोड़ देगा, ये हिदायत को रुखसत हो जाएगी, इसकी जिंदगी से हिदायत रुखसत हो जाएगी, ये जिंदगी जीने का नशा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वअंतुम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तुम नेकियों को फैलाओगे, नेकियों का हुक्म करते रहोगे, नेकियों को आम करते रहोगे,